10-15 मिनट कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। पकड़ कर पकड़ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 সবই তো ভক্তবৃন্দ কি কি হরে কৃষ্ণ। প্রিয় ভক্তগণ, তো আমরা এখন যে স্থানটিতে এসে উপস্থিত হয়েছি, তো এটি হচ্ছে সাক্ষী গোপাল। এটি শ্রীদামপুরীর একটি বিশেষ মন্দির। তো এখানে আমরা এই ভোরবেলায় প্রাতকালে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি এবং এই স্থানটি ভগবান স্বয়ং এখানে মূর্তমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এবং তার চেয়ে বেশি আনন্দের বিষয় যে আমরা ভক্ত সঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করার সুযোগ পাচ্ছি। চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, এই কলিযুগে ভক্ত সঙ্গ ছাড়া কোনো কিছুতে শক্তি নেই, সমস্ত শক্তি ভক্ত সঙ্গের মধ্যে আছে। তো আপনারা সমস্ত ভক্তরা এখানে তপস্যা করছেন, জপ করছেন, এই ধাম পরিক্রমা করছেন,
এটি আমাদের বহু বহু জন্মের স্বীকৃতির ফল। তার চেয়ে বড় বিষয়, আমরা এখানে একজন ইসকনের একজন সিনিয়র ভক্তের সংস্পর্শ পাচ্ছি, যিনি আমাদের এই ধামকে দর্শন করাচ্ছেন। ধাম কখনো চোখ দিয়ে দর্শন করা যায় না। ধামকে যদি দর্শন করতে হয় তাহলে তাকে কান দিয়ে দর্শন করতে হয়। ধামের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে ধামকে দর্শন করতে হয়। আজকে আপনি চলে যাবেন, 1 বছর পর কিন্তু আপনার মনে থাকবে না এখানে কি ছিল না ছিল, কিন্তু আপনি যখন কান দিয়ে শ্রবণ করবেন আপনার হৃদয়ে ভক্তি উৎপন্ন হবে। এই যে ভক্তি উৎপন্ন হলো, এই ভক্তি জন্ম জন্মান্তরে আপনার মধ্যে থেকে যাবে। সেজন্য ধাম আমরা দর্শন করি কান দিয়ে, চোখ দিয়ে নয়। সেজন্য ধাম যখন দর্শন হবে তখন ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে ধামের প্রকৃত যে স্বাদ আস্বাদন করা হয়। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা এতটা ধৈর্যের সহিত এবং টাইমলি, আজকে সবাই খুব টাইম মেনটেন করেছে, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এবং আজকে আমরা এই মন্দির দর্শন করার পর আমরা নৃসিংহ মন্দিরে যাব এবং ইন্দ্রধর্ম সরোবর সেখানেও যাব, খুব সুন্দর জায়গা। সেখান থেকে জগন্নাথ মন্দির দর্শন করে তারপর আমরা দুপুরে প্রসাদ ওখানে আমাদের হোটেলে হবে। এবং দুপুরে প্রসাদের পর আজকে অনেকের ট্রেন আছে সন্ধ্যা 7টায়, অনেকের আছে রাত 10টায়। মোটামুটি 25 জনের মতো ট্রেন আছে সন্ধ্যা 7টায়। আমরা তাদের জানিয়ে দিব যাদের সন্ধ্যা 7টায় ট্রেন আছে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি 5টার মধ্যে প্রসাদ গ্রহণ করবেন। প্রসাদ গ্রহণ করে গাড়ি রেডি থাকবে, আপনি ট্রেনের জন্য রওনা হবেন। যাদের ট্রেন রাত 10টায় আছে, অনুগ্রহপূর্বক সন্ধ্যা 7টা বা 7:30টার মধ্যে প্রসাদ গ্রহণ করবেন, তারপরে আপনার গাড়ি রেডি থাকবে, আমরা ট্রেনের উদ্দেশ্যে রওনা হব। তো সেই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অনুরোধ, যারা দুপুরের পরে আমরা সবাই আপনাদেরকে শপিংয়ের জন্য সময় দেওয়া হবে, কেনাকাটার জন্য সময় দেওয়া হবে, পার্সোনাল কাজের জন্য সময় দেওয়া হবে, সকলের কাছে বিশেষ অনুরোধ এই লাস্ট বার একটু সময়টা মেনটেন করবেন। যে আপনি হারিয়ে গেছেন, আপনার জন্য অনেক ভক্ত অপেক্ষা করবে, এটা মনে রাখতে হবে। যাদের ট্রেন সন্ধ্যা 7টায় তারা 5টার মধ্যে প্রসাদ গ্রহণ করে গাড়ি রেডি থাকবে। যাদের ট্রেন রাত 10টায় তাদের সন্ধ্যা 7টার মধ্যে প্রসাদ গ্রহণ করে গাড়ি রেডি থাকবে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমরা বিশেষভাবে এই ট্যুর আমাদের তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আমরা প্রাথমিকভাবে শুরু করেছি। যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আমাদের মাঝে একজন ইসকনের বিশেষ সিনিয়র ভক্ত যিনি ইসকন গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং এই গুরুকুল বর্তমানে সমস্ত এই ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঝাড়খণ্ড এসব জায়গায় খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। কেশবানন্দ প্রভু একমাত্র ব্যক্তি যিনি গুরুকুলে সবচেয়ে বেশি সাকসেস হয়েছে ইন্ডিয়াতে। এবং কেশবানন্দ প্রভু একজন নিজে পার্সোনালি একজন ডক্টর, এবং তিনি এই ডাক্তারি পেশা, ডাক্তার MBBS কমপ্লিট করার পর, FRCS কমপ্লিট করার পর তিনি সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্যের সেবায়, সমস্ত ভক্তদেরকে কৃষ্ণ ভক্তি দান করার জন্য সেই সেবায় তিনি এখানে যুক্ত হয়েছেন, আমাদের সকল জীবকে উদ্ধার করার কাজে। তো সুতরাং আমরা প্রভুর যে মহৎ উদ্দেশ্য, সেই মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা স্বাগত জানাই। এবং প্রভু যে আমাদেরকে এই 3 দিন সঙ্গ দিলেন, কালকে প্রভু চলে যাওয়ার কথা ছিল, তো আমাদের বিশেষ রিকোয়েস্টে প্রভু আজকেও থেকে গেলেন। তো প্রভুর জন্য সবাই আমরা একবার জুড়ে হরিবোল বলে প্রভুকে সম্ভাষণ জানাবো। সবাই বলেন হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় শ্রী জগন্নাথ ধাম কে, জয় শ্রী ক্ষেত্রপুরী ধাম কে, জয় গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। তো আমার অনুবাদ অতটা ভালো হয় না, আপনারা নিজেরা একটু বুঝে নেবেন। সাউন্ডটা কমে দেবে, প্রথমটা।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे कि प्रभु जी कह रहे थे, गिरिराज के बापू कह रहे थे कि 1 साल के बाद ही आप यहाँ वापस आइएगा, है ना। तो जब आप 1 साल के बाद आइएगा तो आपको ये याद जो है घर पे जाके आते रहेगा। তো আপনারা যখন 1 বছর পরে আবার ফিরে আসবেন তখন আপনার ঘরে গেলে এই যে ধাম মাহাত্ম্য এগুলো আপনার মনে স্মরণ আসবে। আচ্ছা, অনুবাদ করা লাগবে? ঠিক আছে। क्योंकि आज का आधा क्लास बांग्ला ही होने वाला है। बस शुरुआत में 1-2 लाइन हिंदी बोल रहा हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट बोलूँगा। बहुत सारे बांग्ला है, बहुत सुंदर है। जब घर जाके आप यहाँ का याद करेंगे, आपको यहाँ का याद जाने वाला नहीं। आप जगन्नाथ का जो याद है ना, आपके ऐसे मन में ऐसा छप जाएगा जाके कि आपके निकालने से भी नहीं निकलेगा। आपको यही याद आएगा, दिन में रात में लगेगा क्यों आ गए हम लोग, वहीं रहना चाहिए था, ऐसा लगेगा। और यही धाम आने का सफलता है। और हम इस पावन जगह पे बैठे हैं, ये साक्षी गोपाल का मंदिर है और ये जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच में, और जगन्नाथपुरी और खुर्दा स्टेशन के बीच में ये जगह है। ये गांव है। ये गांव पहले था नहीं, ये गांव बनाया गया गांव है। कहानी इसका है कि जो राजा जो थे, राजा ये जो साक्षी गोपाल जी का जो विग्रह है जब यहाँ लेके आए तो पहले वो कटक में रखे कुछ दिन। जब कटक में रखे, पहले दक्षिण भारत में थे, उसके पहले वृंदावन में थे। तो कटक में जब रखे तो कटक से वो उनको लाके जगन्नाथपुरी के मंदिर में इनको सेटल कर दिए थे। वहाँ पे जगन्नाथ जी का और इनका प्रेम कलह हो गया, झगड़ा हो गया। जगन्नाथ बोले मेरा खाना कम पड़ने लगा है, ये आधा ये ले रहा, आधा मैं ले रहा हूँ, इसको निकालो यहाँ से। तो राजा जो है फिर सेटलमेंट किया। वो सेटलमेंट ये हुआ कि राजा 11 मील दूर जगन्नाथपुरी से यहाँ एक पूरा गांव बना के बसा दिया और यहाँ पे मंदिर बना के दे दिया भगवान। और यहीं पे सिस्टम बना दिया कि आप इधर रहो और जगन्नाथ उधर रहेगा, लड़ाई मत करो, दोनों ठीक से रहो। तो यही साक्षी गोपाल यहाँ पे आए। तो इनकी जो महिमा है, इसकी जो कहानी है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने टोली को लेके, भक्तों को टोली को लेके चले हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। पहली बार जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। रास्ते में आया है खीर चोर गोपीनाथ। खुर्दा स्टेशन से पहले है बालासोर, बालासोर से 8 किलोमीटर अंदर जाइएगा तो खीर चोर गोपीनाथ है। आप लोग में से जो लोग नहीं गए हैं बहुत ही अभागे हैं। कितने लोग अभागे हैं हाथ उठाइए। हाँ, इसे तो हम जान रहे। खीर कितने लोग खाए वहाँ पे? वहाँ का खीर कितने लोग खाए? हाँ, टपोरी ने वो हम आपको क्या बोले थे खीर लेके आने के लिए? हाँ, भूल गए। खीर लेके आए, कोई मोबाइल लेके आए। पुष्कर बाबू আমার কি কোথায় মোবাইলটা দেন দিয়েছিলাম তো কার दुनिया का सबसे टेस्टी जो खीर है वो खीर चोर गोपीनाथ में मिलता है। दुनिया में इससे अच्छा और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। और उसको भगवान ने चोरी किया, मतलब सच में क्वालिटी हाई है उसकी, है ना।
जो भगवान ने चुराया मतलब क्वालिटी है चीज़ है, वही चीज़ खा सकते हैं, है ना। भक्त लोग वही लेते हैं, प्रसाद रहता है तो हमेशा अच्छा ही क्वालिटी खाते हैं। इसलिए दुनिया में लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा करने से पेट भरेगा, लेकिन हरे कृष्णा करने से प्रसाद मिलेगा, है ना। और प्रसाद का जो क्वालिटी है सबसे हाई होता है। जगन्नाथ पुरी का जो प्रसाद है, आप 3 दिन पुराना वहाँ पे जो कर्ड राइस है खा के देखिए, एकदम खराब नहीं होता, वैसे ही टेस्ट आता है। कैसे? इसको बहुत लोगों ने रिसर्च किया कि ऐसे खराब क्यों होता है यहाँ का चावल, यहाँ का। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण देखिए, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है, जो बनता है ना मिट्टी के बर्तन में, और लकड़ी से बनता है। नीचे रहता है चावल, उसके ऊपर एक बर्तन रहता है सब्जी, फिर और एक बर्तन रहता है कुछ और चटनी, उसके ऊपर रहता है दाल, सबसे ऊपर होता है दाल, और नीचे से आग लगाते हैं चावल में। चावल का एक दाना जलता नहीं और दाल का एक दाना कच्चा नहीं रहता। कैसे हो गया ये? कैसे होगा? चावल तो पहले पकेगा, दाल बाद में पकेगा, तो दाल कच्चा रह जाना चाहिए, चावल जल जाना चाहिए, है कि नहीं? बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। उसके बाद ये बन के आया। वो कहते हैं लक्ष्मी स्वयं रांधन करती है वहाँ पे। इसका प्रूफ दुनिया को, इसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, ये गधों लोगों को, हमको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं। हमको ये दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है। और वो जब जाके जगन्नाथ को भोग लग जाता है तो उसमें तुलसी चढ़ जाता है ना। तो तुलसी चढ़ने के बाद उसका जो शक्ति है और ही कुछ आ जाता है। तुलसी का आपको शक्ति देखना है तो अभी सामने के सामने आप शक्ति देख सकते हैं तुलसी का, है ना। तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा नजदीक हो, मोबाइल दो तुम्हारा। अभी देखिए तुलसी का शक्ति देखेगा। तुलसी का पत्र है इधर? तुलसी नहीं तो फिर होगा है। हाँ दीजिए, इधर दीजिए, हाँ दीजिए। तुम इधर आओ, तुम हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो। अभी हम हाथ दबाएंगे, देखिएगा। अभी नहीं, हम बताएंगे। ये मोबाइल, ये घड़ी खोलो, घड़ी खोलो, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब निकालना होगा। अब देखिएगा, हाथ ऐसा करो सीधा। अब हम दबाएंगे, दबने नहीं देना, ताकत लगाओ। देखिए ताकत इसका कितना है, देख रहे हैं? लगाओ, ताकत लगाओ और लगाओ। अब देखिए इसका ताकत कैसे हो जाएगा। ये हाथ में मोबाइल पकड़ो, हाथ ऐसा करो। अब हम खाली 2 उंगली लगा रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, पहले हम 5 उंगली लगाए थे, अब हम फिर से करो। अब हम बस 1 उंगली लगा रहे हैं, देखिएगा क्या हो गया। जादू हुआ? जादू हुआ कि नहीं? देखो, अब हम कानी उंगली लगा रहे हैं। और बोलो अब क्या बच्चा, इससे ज़्यादा इज्जत किया जाएगा। खत्म। तुलसी दीजिए, तुलसी का पावर दे दो, इसको रखो साथ में। हमने कुछ नहीं किया है, इसके साथ खाली तुलसी लगाए। देखिएगा तुलसी का ताकत, देखते हैं तुलसी का ताकत कितनी। चलो अभी लगाओ, हाथ लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। देखो बढ़ गया ताकत, है ना। ये है तुलसी का महिमा। इसमें अगर गाय का गोबर लगा देंगे तो और ताकत बढ़ जाएगा। शुद्ध देसी गाय का गोबर, है ना। हरि बोल। चलो ठीक है, जय सचिन साहब। तो जब उसमें तुलसी डाल के जगन्नाथ जी को चढ़ा देते हैं और जगन्नाथ जब उसको ले लेते हैं, उसमें जादू हो जाता है। वो फिर जब बाहर आता है 5 दिन 6 दिन तक भी कुछ खराब नहीं होता, वो ऐसे रहता है। दही चावल खराब नहीं होता। 3 दिन, इतना गर्मी में 3 दिन के बाद भी दही चावल खा रहे हैं, उसका वो खा रहे हैं, सब कुछ खराब नहीं होता। आश्चर्य है ना। घर में कितना दिन में खराब होता है? चावल दही बनाएंगे, आज का चावल कल खा पाएंगे? हाँ, रात तक में नष्ट हो जाएगा। फ्रिज में रखना पड़ेगा। वहाँ कोई फ्रिज है जगन्नाथपुरी में? ऐसे रखा रहता है सब, बाहर खोल के, खराब नहीं होता। उसका जो तत्व है उसका नष्ट नहीं होता। तो ये जो जादू है, ये जादू, ये धाम का जादू है, ये भगवान का जादू है। और भक्तों को वही चीज़ मिलता है जो भगवान के पास है। तो बेस्ट चीज़ भगवान को जाता है और बेस्ट चीज़ भक्तों को आता है। तो अब हम लोग साक्षी गोपाल की कहानी पढ़ेंगे। जय बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य महाप्रभु की जो टोली है वो पहले गई खीरचोर गोपीनाथ, और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि यहाँ पे भोग लग रहा है, और चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का कहानी बताया कि माधवेंद्रपुरी ने कैसे यहाँ पे आए और कैसे उनके लिए खीरचोर गोपीनाथ जी ने खीर चुराया, जो दूध को उबाल के रबड़ी बनाते हैं, हल्का गुड़ डालते हैं और गोईठा में और लकड़ी में उसको बनाते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है। तो वो कहानी आप लोगों ने वहाँ सुना है। तो हमारे ऑनलाइन के जो दर्शक हैं उनके लिए हम कहानी बाद में बताएंगे। अभी हम साक्षी गोपाल, वहाँ से ये टोली चलते 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 यहाँ आ गए। अब जगन्नाथपुरी लोग पहुँचे नहीं, जगन्नाथपुरी पहुँचेंगे तब वो सार्वभौम भट्टाचार्य मिलेंगे, तब वो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सब, वो कहानी हमने पहले सुन लिया, लेकिन अब हम थोड़ा पहले आ गए। अभी वो टोली वहाँ नहीं पहुँचा, अभी यहीं तक आई है। तो हम लोग श्रीधाम जगन्नाथपुरी के साक्षी गोपाल मंदिर में हैं, और यहाँ से साक्षी गोपाल की कथा को लाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे साक्षी गोपाल की कहानी चैतन्य महाप्रभु अपने सब अनुयायियों को, पार्षदों को सुना रहे हैं कि साक्षी गोपाल की कहानी आई कहाँ से, साक्षी गोपाल आए कहाँ से। बस शुरुआत का हमको 1-2 श्लोक लेना पड़ेगा यहाँ से। साक्षी गोपाल रे कथा सुनी लोक मुखे, सेई कथा कहे न प्रभु सुने महा सुखे। साक्षी गोपाल की कथा बहुत सुख के साथ सुन रहे हैं और कह रहे हैं। पूर्वे विद्यानगरे द्वैत ब्राह्मण, तीर्थ करी बारे दुहे करील गमन। अब हम चालू हो सकते हैं। शुरुआत में हमको एक स्टार्टअप चाहिए कहीं से। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि एक बार दक्षिण भारत में विजयनगर करके एक जगह था, वहाँ 2 ब्राह्मण रहते थे, एक बूढ़े थे एक जवान थे। एक बार की बात है, कहानी चालू हो गई, और ये दोनों तीर्थ करने के लिए ये लोग निकले वहाँ से, और निकल के तीर्थ करने चलते 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 चलते, उस समय ट्रेन नहीं था, फ्लाइट नहीं था, चल चल के जाते थे, और लोग बड़े मजबूत हुआ करते थे, पेड़ की जो डाली यहाँ से तोड़ देते थे। आजकल लोग फ्लाइट से जाते हैं, पेड़ की डाली नहीं, पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ पाते, पत्ता भी सोचते सर अपने से टूट जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलते चलते वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँच के ये लोग घूमना चालू किए, पूरा सारा तीर्थ गोकुल से लेके महावन, काम्य वन, बिल्वा वन, जितने भी वन है वहाँ पे, भांडीर वन, वृंदावन, मधुवन, सारे वनों को घूम के ये लोग दर्शन करते रहे। विश्राम घाट, मथुरापुरी, सब घूमते रहे। और ये जो छोटा ब्राह्मण था, जो जवान था, वो बड़े ब्राह्मण को बहुत अच्छा सेवा कर रहा था, उसका सामान लेके चलता था, उनको कहीं भी कोई दिक्कत हुआ, नदी में नहाने के लिए उस साफ में उतार देता था, नहा के फिर वो निकाल लेता था, कपड़ा उनका धो के सुखा देता था, प्रसाद का व्यवस्था भी कर देता था, रात में उनका चरण दबा देता था, उनको तेल लगा देता था। तो जो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, तुम इतना क्यों कर रहा है? बोला, आप इतने ब्राह्मण हैं, आप इतने भक्त हैं, आपका सेवा करने से मेरे को भक्ति का संपदा मिल जाएगा, इसी संपदा के लिए हम कर रहे हैं। तो बहुत खुश होता था। तो घूमते 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 वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर है, आप लोग देखें, गोविंद जी का मंदिर है, 7 तला मंदिर था, जिसका ऊपर का 3 तला टूट गया है। कुछ लोग देखे हैं ना, आप लोग वृंदावन गए हैं कुछ लोग? चलो, वृंदावन की यात्रा कभी है? 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर वृंदावन की यात्रा 3 अक्टूबर को है आप लोग की। तो वहाँ गोविंद जी का जो मंदिर है, वहाँ पे एक गोपाल जी का मंदिर था पहले, गोविंद जी का मंदिर बनने के पहले की बात है। तो ये लोग वहाँ गोपाल जी के मंदिर गए, और वहाँ पे रात में वो लोग रुक गए। जब रात में रुक गए तो फिर यही जो छोटा ब्राह्मण था, फिर ये वही सेवा कर रहा था, खाना खिलाया, कपड़ा सब सरिया दिया, उनका पैर दबाया, तेल लगा दिया। तो जो बड़ा ब्राह्मण बोला, मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको कुछ दूँ। तो छोटा ब्राह्मण ने, हमें कुछ लेने के लिए थोड़ी आपको सेवा कर रहे हैं। नहीं, हम देना चाहते हैं। बोला, अरे आप क्यों आप देना चाहते हैं, हम तो ऐसे ही सेवा कर रहे हैं आपको। नहीं, मैं तुमको अपना कन्यादान करना चाहता हूँ। वो छोटा ब्राह्मण बोला, अरे ये संभव ही नहीं,
आप अमीर हैं, आप पंडित हैं, और मैं हूँ ब्राह्मण लेकिन पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ाई किया ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं, और पैसा वैसा कुछ है नहीं मेरे पास, इसलिए ये असंभव चीज़ क्यों बोल रहे हैं? बोले वामन जो है, जो नाटा आदमी है, वो बोलेगा हम चांद छू लेंगे, तो आदमी भी नहीं छू सकेगा, तो नाटा आदमी कहाँ से छुएगा? वामन बोलेगा मैं चांद धरते पाए, तो चांद धर लेगा वो? वामन धर लेगा चांद को? नहीं। हाँ, त्रिविक्रम बनेगा तो धर सकता, लेकिन वामन लेवल पे तो नहीं धर सकेगा। तो बोला नहीं हो सकता। तो विप्र बोला है क्यों नहीं हो सकता है? हम देना चाह रहे हैं, मेरी करनी है, मेरी बेटी है, हम देना चाहेंगे तो कौन रोकेगा? बोला नहीं, आपका बेटा है, आपका परिवार वाला है, वो लोग सब रोकेगा। आपको कहानी नहीं मालूम है? भीष्मक राजा जो है बेटी देना चाहता था कृष्णा को, फिर क्या हुआ? उसका अपना ही बेटा जो था वो उसका अगेंस्ट हो गया, रुक्मिणी का भाई, और वो इतना जोर से लड़ाई किया कि पूरा एकदम पूरा जो है उसको आखिरी में शिशुपाल को लड़की देने के लिए तैयार होना पड़ा। तो ऐसे ही हो गया। लेकिन इस कहानी में एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ ये है कि आखिरी में रुक्मिणी कृष्णा की हुई ये उसने बोला नहीं तो बोला हाँ, बोले ये है, लेकिन इसलिए आप क्या करो, आप ये सब मन से ख्याल निकाल दो। तो जो ब्राह्मण था बोला नहीं, बेटी मेरे है, हमको कौन रोकेगा? तो छोटा ब्राह्मण बोला देखो, अगर तुमको ऐसा ही सच में मन है देने का, है ना, तो गोपाल के आगे बोलो ये चीज, साक्षी लो गोपाल का, नहीं तो मत बोलो। तो बोला हाँ बोलेंगे ना। तो दोनों जो है सुबह उठे, नहा धो के गोपाल के मंदिर में आए, यही गोपाल थे उधर, और बोले देखो गोपाल, आज मैं वचन लेता हूँ कि अपना कन्या मैं इसको दान करूँगा, तुम साक्षी रहेगा। तो छोटा ब्राह्मण बोला गोपाल साक्षी रहेगा, अगर कुछ भी दाएं बाएं हुआ, ऊपर नीचे हुआ, मैं तुमको बुलाऊंगा साक्षी। गोपाल कुछ बोला नहीं। ये दोनों ने डिसाइड करके अपना अपना सब टर्म कंडीशन लगा दिया गोपाल के ऊपर। गोपाल बोला यार मैं इधर खड़ा हूँ यार, मेरे ऊपर तुम लोग जबरदस्ती का साक्षी करके जबरदस्ती का लेकर जाने का सिस्टम बना, इसलिए थोड़ा यहाँ पे अलग सिस्टम, जबरदस्ती सिस्टम। वही अभी तक चल रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो ये बोला ठीक है। अब दोनों जो है वहाँ से चलते चलते आए, विजयनगर आए। जब विजयनगर आए तो दोनों अपने अपने घर चले गए। तो जो बड़ा ब्राह्मण था सब नाती लोग को, सबको, अपना बच्चा लोग को सबको जुटाया, सबको घर में जितने लोग थे, आप बगल अगल का चाचा काका मामा सबको बुलाया, और बुला के घर में घोषणा किया कि देखो हम साथ में गए थे धाम में, मेरे साथ ये जो था लड़का गया था साथ में, गांव का लड़का, इसको हम इतना सेवा किया मेरा कि हम खुश हो गए सेवा से, और इसको हम वचन दिए हैं कि हम अपना कन्या इसको दान करेंगे। ये बोलते ही घर में जितना लोग था सब एकदम चिल्ला चिल्ली चालू हो गया। क्या उस नालायक को बेटी देंगे? पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा नहीं है, उसको बेटी देंगे? अच्छा है खाली सेवा कर दिया, आपको ठग लिया, मीठा मुठे बोल के ठगा आपको। तो घर के जितने लोग थे, बाकी जो नाते काका चाचा जो थे गोतिया लोग, वो बोले इसको बेटी दोगे ना, तुम्हारे यहाँ से हम लोग सब नाता तोड़ लेंगे, आना जाना बंद, हुक्का पानी बंद तुम्हारा। ऐसा छोटा घर में बेटी देंगे कभी? और ये देख के जो बीवी थी और बेटा था वो दोनों और चढ़ गए, बोले हम लोग जहर खा के मर जाएंगे, तुम बेटी दो हम जहर खा लेंगे। अब ये जो बूढ़ा था ये एकदम चुप, अब क्या करे, एक तरफ जहर खाने वाला, कभी कभी जहर खा भी लेते हैं लोग, ऐसे हर बार सक्सेस नहीं होता, 100 में से 90 नकली होता है लेकिन 10 असली भी होता है। कभी कभी लोग जहर खा लेते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था तो एक लड़की जहर पी के आई थी, 1 बोतल जहर। हम लोग एकदम पूरा दवाई ववाई करने लगे, एक पूरा 3 दिन तक दवाई करते रहे। उसका कुछ ना सांस तेज हो रहा है, ना उसका धड़कन तेज हो रहा है, ना उसका, हम की दुर्गा उर्गा है क्या, 1 बोतल जहर पचा गई। तो उसको मैं पूछा साइड से कि तुम जहर कितना पीती? तो देखी कोई नहीं, बोला कि सर हाँ, बोले सर वो पानी था
वो खाली बोतल था जहर का। हम ठीक है लेटे रहो। उसके बाद का घर वाला लोग आया, बोला क्या होगा? हमने, अरे हमारे रहते पेशेंट को कुछ नहीं हो सकता। बोला इसका जान बचेगा? बोला मेरे रहते इसका जान कोई नहीं रोक सकता, ये बचेगी, मैं गारंटी देता हूँ। लोग बोले कि आप तो भगवान हैं। हमने कहा भगवान नहीं है लेकिन हम बचा लेंगे। वो पूरा हल्ला हो गया, वो डॉक्टर भगवान है उधर, भक्त है, हरे कृष्णा का भक्त है। हम के मेरे को भगवान बनाने वाली तेरी बेटी। तो अगर सच में जहर पी ली होती तो हम भगवान से इंसान हो जाते। तो जहर कभी कभी असली लोग पी लेते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण था वो डर गया कि भाई सच में अगर ऐसा हो गया, मर गई बीवी तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार एक गृहस्थ आए थे मेरे पास, यात्रा चल रहा था ऐसे ही। मेरा सीनियर था, मेरे सीनियर एक डॉक्टर हैं, तो उनकी बीवी और उनका झगड़ा हो गया और वो खाना खाने से मना कर दी कि हम खाना नहीं खाएंगे। तो मेरे पास आए, बोले क्या करना चाहिए मेरे को, समस्या का समाधान करने मेरे पास आए थे। मैंने क्या करना है, आप खाना खा लो। बोले उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? मैं कहा उसका क्या होगा? उसको भूख लगेगा, खा लेगी। बोला प्रभु जी आप मुझे ब्रह्मचारी कहीं नहीं तो बना रहे हो ना। मैं बोला अरे इसमें क्या है, खाना खा लो। तुम खाना खा लो, वो नहीं खाना खाएगी तो जब भूख लगेगा खा लेगी। उसके बाद वो चला गया बेचारा, वो कुछ नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि उसकी वाइफ आई, वो भी खाना खा के गई। बोले खाएगी ना, भूख लगेगा तो खाएगी, तू क्या को टेंशन ले रहा है। लेकिन गृहस्थ लाइफ में ऐसा नहीं चलता है। बीवी ने बोल दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो पति को लगता है अभी नहीं खाएगी, बाप रे बाप क्या होगा। उसको लगता है कि प्रॉब्लम हो गया। वो बीवी उसको कन्विंस कर देती है और बेवकूफ़ बना देती है, और वो बेचारा बेवकूफ़ बनकर सोचता है कि खाना नहीं खाएगी, अभी सच में नहीं खाएगी। इसलिए ब्रह्मचारी लोग के साथ रहा करो, तुमको ज्ञान देंगे कि सच में होने वाला क्या है। कुछ नहीं होने वाला, बोले वो खा लेगी, चिंता मत करो। और ज्यादा रहोगे तो तुमको ब्रह्मचारी आश्रम में रखेंगे। तो ये जो थे बूढ़े ब्राह्मण, वो डर गए तो अब क्या करें। तो बोले कि अब वो मन से प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा वचन जो है वो न टूटे, आई पति बीवी बच्चा भी ना मरे, कुछ उपाय लगाओ। मन से चिंता किया तो उसका बेटा बोला सुनो, अगर वो ब्राह्मण ऐसा बोलेगा आके कि हम ऐसा वचन दिए तो तुम बोलना हमको कुछ याद नहीं, बाकी हम कर लेंगे जो कहानी बनाना है। सब लोग सहमति हो गया। बूढ़ा बोला ठीक है क्या करेंगे भाई, यही करना होगा। वो हाँ बोल दिया। इधर कुछ दिन पार हुआ, ये मन में चिंता कर रहा है गोपाल मेरा लाज रखो, गोपाल मेरा लाज रखो ऐसा। और वो जो दूसरा छोटा ब्राह्मण है वो कुछ दिन तक देखा कुछ खबर नहीं आ रहा है, इतना दिन हो गया। तो वो अपने से आया इसके घर पे, बोला विप्र ये आप वचन दिए थे कन्यादान करने के लिए, कुछ उसका हाल सुगबुगाहट नहीं हो रहा है, कुछ होना चाहिए ना, कुछ का सुपारी उपारी कुछ आता है ना, संदेश पान पत्ता क्या क्या देते हैं पहले भेजना होता है। तो बोले कौन सा वचन? बोला वचन दिए थे ना कि कन्यादान करेंगे। बोला हमको तो कुछ याद नहीं है। जैसे ही बोला उसका बेटा है ना, एगो ठेंगा है, वो लाठी लेके आया और लाठी लेके उसको दौड़ाया। वो भागा, वो लाठी देख के क्या करेगा, भाग गया। भाग के पूरा गांव को जाके हल्ला किया, हल्ला करके पूरा गांव को जमा किया और जमा करके लेके आया, सबको लेके आया। पंचायती किया, पंचायत बुला के लाया और पंचायत बुला के लाया। बोला कि देखो ये जो ब्राह्मण था हमको ऐसे ऐसे बोला और आज देखो ये मुकर गया। सब बोला ऐसा तुम बोला था क्या? बोला हमको कुछ याद नहीं। तो बेटा क्या बोलता है, असली बात सुनो क्या हुआ था। हम अपने बाबा को बहुत सारा पिताजी को बहुत सारा पैसा दे के हम भेजे थे, और पिताजी तो सब बोला हाँ ये तो बात है, कोई पैसे वाले लोग हैं। इसको था पैसा पे नजर। ये क्या किया, ले जाके उधर खिला दिया धतूरा। धतूरा खिला के इसका दिमाग घुमा के इसको निशा करके सुला दिया।
अब जब मेरा पिताजी सो गए, ये पैसा लेके भाग गया, और अब मार खाने से बचने के लिए कहानी बना रहा है कि मेरा बेटी देगा करके बोला है। तो लोग बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा इतना फ्रॉड आदमी है ये, पैसा ले लिया और बोलता है बेटी देगा। ये बात तो सही है, ये क्यों बोलेगा बेटी इसको देगा? इतना अमीर आदमी इसको गरीब को बेटी क्यों देगा? बोल ही नहीं सकता है। और पैसा वाला बात सही है क्योंकि पैसा लेके गया ही होगा ये, और इधर उधर खिला भी सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते, जमाना खराब है, कलयुग चल रहा है। तो अब दो पार्टी हो गया। अब ये जो था ब्राह्मण बोल रहा है देखो हम सच बता रहे हैं, झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है। बोले क्या कहानी नहीं बना रहा है? बोले ये गोपाल के सामने ये साक्षी देख के इधर लेके आया। बोला गोपाल, हमको गोपाल के सामने हम लोग साक्षी दिए है। तो सब बोले कि देखो वो साक्षी इधर थोड़ी आके बोलेगा, जो है इधर का बात करो। अरे नहीं, साक्षी दिया है, बोलो कि नहीं दिया है? कुछ बोल नहीं रहा है। बोला ठीक है, अगर गोपाल इधर आके साक्षी देगा तब तुम मानेगा कि नहीं मानेगा? तो गांव का जो आधा लोग था वो हंसने लगा, गोपाल साक्षी देगा, उधर वृंदावन से इधर आएगा, साउथ इंडिया आएगा। और जो कुछ जो थे, कुछ आधे लोग भक्त थे, बोले बाप रे हो भी सकता है, गोपाल साक्षी देगा तो दे भी सकता है। आधे लोग बोल रहे नहीं दे सकता है, दे सकता है, नहीं दे सकता है, दे सकता है। तो ये बोल रहे हैं, लेकिन वो आने के बाद तुम लोग पलट गया तो इसलिए पहले लिखा पढ़ी कर लो कि गोपाल साक्षी देगा तो हम कोई कन्यादान करेगा, लिखो। तो जो उसका जो बेटा था बोला हाँ ये लिखने में क्या जा रहा है, गोपाल थोड़ी, तो वो तो पहले से नास्तिक था, बोला ये तो होगा नहीं। बोला हाँ लिख देते हैं। तो कागज पे लिखा पढ़ी किया गया कि अगर गोपाल आएगा साक्षी देगा कि हाँ ये है, तब ये जो लड़की हम कन्यादान करेंगे। वो सब साइन किया, बाप साइन किया, उसका बेटा साइन किया, गांव का सब पंचायती सब लोग साइन करके पेपर रेडी किया। वो 1-2 कॉपी बनाया गया, एक कॉपी लेके अपने साथ गया, बोले चलो अब कोई बदला बदली नहीं हो सकता, लिखा पढ़ी हो गया। उसके बाद ये वहां से चलते हुए फिर से गया वृंदावन और गया गोपाल के पास। बोला गोपाल देखो ऐसा सब अनर्थ हो गया। वो जाके उधर ऐसा बोल रहा है कि वो हम बोला ही नहीं आपके सामने आके, बताओ तुम बोले थे ना साक्षी देगा। तो गोपाल बोलते देखो तुम चिंता मत करो, मेरे पे भरोसा रखो, तुम चले जाओ, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा, प्रकट होके साक्षी दे दूंगा। बोला नहीं, तुम चतुर्भुज नारायण रूप लेके भी प्रकट हो जाओगे ना, कोई भरोसा नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलना पड़ेगा, तुम जैसे हो वैसे। बोले अरे मैं बोल रहा हूं ना मैं प्रकट हो जाऊंगा उधर जाके। अरे वैसे प्रकट होने से थोड़ी होता है, बोला उधर वचन तुम दिए है, प्रकट कोई और हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं। चलना होगा ऐसे ही चलना होगा। अरे बोले प्रतिमा चलता है कभी सुने? प्रतिमा बोलता है तुम सुने कभी? तुम बोल सकता है तो चल भी सकता है। तो गोपाल हंसा, बोला चलो ठीक है, मैं तेरे पीछे पीछे आएगा, चल तुम आगे मैं पीछे, पीछे मुड़ना मत, और रोज मुझे 1 सेर भात खिलाना। बोला खिलाएंगे ना, क्यों नहीं खिलाएंगे, चलो। और पीछे पीछे गोपाल, आगे आगे ब्राह्मण, चलते 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 विजयनगर तक उधर पहुंचे। रोज 1 सेर चावल बना बना के गोपाल खा लो, गोपाल खा लो। और करते करते ये लोग विजयनगर पहुंच गए। और जब विजयनगर पहुंचे गोपाल जी, वहाँ पे जैसे वो गांव में खबर फैला दिया कि देखो गोपाल आ गए, गांव के बाहर आके खड़ा हो गए। वो नदी था, नदी को पार किए। कुछ लोग कहते हैं कि जब नदी पार कर रहे थे तो उसका घुंघरू का आवाज़ जो है बंद हो गया था। तो वो पीछे मुड़ के देखा तो गोपाल बोला अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हाँ भाई हम यहीं रुकेंगे, तुम बुला लो सब, मेरा भी कोई लेवल है यार, हम भगवान है। ऐसे थोड़े कि गाँव के जहाँ वो लोग गली गली में घूमते रहेंगे गोपाल इसका साक्षी देने आए। अरे हम हमारा भी कुछ रिस्पेक्ट है। तो फिर वो बोला ठीक है, गांव के सब लोगों को बोला गोपाल आ गया, चलो। सब लोग बोला ऐसा कैसे होगा, सब लोग देखने, जो लोग श्रद्धालु थे, गोपाल आ गया। जाके देख रहे हैं तो साक्षात गोपाल वृंदावन से पहुंच गए। बोलो गोपाल जी महाराज की जय। और गोपाल जब सब गांव का पूरा आदमी जमा हो गया तो गोपाल बोलना चालू किए, ये ब्राह्मण ने साक्षी दिया था कि ये अपनी कन्या का दान छोटे ब्राह्मण को करेगा। हरि बोल। गोपाल साक्षी दे दी। बड़ा ब्राह्मण बोला मेरा लाज बच गया, कोई घर में मरेगा भी नहीं, मेरा वचन भी सच रह गया।
छोटा ब्राह्मण बोला मैं इसलिए गोपाल को लेके आया कि एक वैष्णव का बात गलत नहीं होना चाहिए। ये जो वैष्णव बात बोला है वो गलत हो गया तो धर्म टूट जाएगा, इसलिए मैं इतना दूर जाके आया, नहीं तो और क्या जाता था। और उसके बाद फिर जब सब गांव के लोग समझ गए कि गोपाला के साक्षी दिए, तो फिर इनका जो है कन्यादान किया गया। कन्यादान हुआ, गोपाल के सामने कन्यादान हुआ और विवाह हुआ छोटे ब्राह्मण का उसके कन्या के साथ। और उसके बाद भगवान वहीं रहने लगे विजयनगर में, और साक्षी गोपाल जी वहीं पे साक्षी गोपाल करके फेमस हो गए, साक्षी गोपाल हैं। और बाद में जो प्रताप जो यहाँ राजा थे, पुरुषोत्तम देव राजा थे यहाँ के उड़ीसा के। ये पुरुषोत्तम जो राजा थे प्रताप रुद्र के पहले, उनके पिता या दादा होंगे उनके पहले, वो उन्होंने दक्षिण भारत में चढ़ाई किया था। और दक्षिण भारत में चढ़ाई करके पूरा आंध्रा, उधर का मद्रास, वो सब एरिया जीत लिया था। और यही बाद में आप देखेंगे कि रामानंद राय जो थे वो मद्रास के गवर्नर थे, कोवूर से लेके पूरा तमिलनाडु मद्रास तक के गवर्नर थे। और वो पुरुषोत्तम इसके प्रताप रुद्र के गवर्नर थे, मतलब प्रताप रुद्र राजा थे उड़ीसा के, उनके नीचे के गवर्नर होते थे एक एक एरिया के। तो पूरा साउथ इंडिया का जो गवर्नर थे रामानंद राय थे। भाई बहुत बड़ा पोस्ट है भाई, राजा का गवर्नर होना और आज के गवर्नर में बहुत फर्क है। आज के गवर्नर 5 साल में 4 साल में बदल सकते हैं, राजा का गवर्नर हमेशा के लिए गवर्नर, वो कभी बदलेगा नहीं। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो नहीं रिजाइन मारेगा तब तक वो गवर्नर। तो ऐसे जब वो चढ़ाई किए विजयनगर को जाके, पुरुषोत्तम देव चढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, देखा कि सबसे बड़ा कीमती चीज़ यहाँ पे भगवान है। और भगवान को बोला चलिए भगवान अब हमारे उड़ीसा में रहिए, हो गया आपका इधर का साक्षी देने के ये काम था ना, हो गया काम खत्म, चलो। और उनको भगवान को बहुत बड़े भक्त थे वो भगवान को लेके आ गए और लाके कटक में स्थापित कर दिए। और जब वो कटक में स्थापित किए उस समय नित्यानंद प्रभु दर्शन करने के लिए आए हुए थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आने के कोई 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल। और उस समय वो जब नित्यानंद प्रभु दर्शन किए कटक में, दर्शन करके जब नित्यानंद प्रभु चले गए तो ये उसके बाद गोपाल जी को जगन्नाथपुरी मंदिर में शिफ्ट किया गया। और जगन्नाथपुरी मंदिर में जब रहने लगे तो जो भोग था, भोग इनको भी जाने लगा, 2-2 भोग बटने लगा। तो जगन्नाथ और इनके बीच में प्रेम कलह हो गया। और भगवान जो है बोले कि ये गोपाल को यहाँ से हटाओ, ये मेरा खाना खा रहा है, मेरा भोग ले रहा है। तो भगवान जो राजा थे बोले ठीक है हम दिव्य रूप से सेटल करेंगे। उनको ला के यहाँ पे एक नया गांव बना दिया, सत्या एक गांव है, और यहाँ नया गांव बसा के ये भगवान का यहाँ पे श्री मंदिर बना दिया गया। और भगवान को साक्षी गोपाल को तब से यहीं पे पूजा जाने लगा। साक्षी गोपाल महाराज की जय। तो ये साक्षी गोपाल जी हैं। और जब यहाँ भगवान रहने लगे, जो पुरुषोत्तम देव जो राजा थे उसकी एक रानी, जो उसकी जो रानी थी उसके पास एक बहुत सुंदर नथ था। तो रानी बहुत बड़ी भक्त थी और रानी चाहती थी कि ये जो नथ है बहुत भारी नथ, पहले के ज़माने में बड़े बड़े नथ पहना करती थी रानियाँ। अभी उतना भारी नथ रहेगा तो नाक की ऐसा हो जाएगा, सब कमज़ोर हो गए ना आज के ज़माने में, नाक गिर जाएगा। ऐसे बहुत भारी नथ पहन, अभी भी पूना में जो होता है ना पुनेरी नथ बहुत फेमस है, बड़ा नथ पहनते हैं पूना की जो स्त्रियाँ, बहुत पुराने जो आज से 20-30 साल पुरानी जो महिलाएं हैं बड़ा बड़ा नथ पहनती थी। तो उसके बाद रानी के पास एक बड़ा नथ था। तो रानी बोली कि गोपाल के नाक में ऐसा छिद्र है क्या? तो देखा कुछ छिद्र नहीं है। तो उसका इच्छा था ये नथ उनको पहनाने का। तो वो सोची कि अगर इनको होता तो हम पहनाते, है ना। तो जैसे ये सोच के उसने प्रार्थना किया और फिर से जाके देखा तो वहाँ पे एक छिद्र आ गया, नाक में एक छिद्र था, पहले नहीं था। फिर रानी ने वो जो नथ है गोपाल जी को चढ़ा दिया और गोपाल जी इस तरह से वो नथ जो है रानी का स्वीकार कर लिया। ऐसे भगवान को अपना चीज़ तो देते नहीं है, लेकिन भक्त इतने महान भक्त थे कि उन्होंने बोला और भगवान को छिद्र आ गया तो भगवान लेने का मन, यही करने का मतलब ये है। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ये कथा कहते कहते पूरा रात बिताए, सुबह मंगल आरती किए यहाँ पे और फिर यहाँ से निकल के अथार नाला होते हुए जगन्नाथपुरी को दर्शन करने गए। जगन्नाथ स्वामी की हरे कृष्ण। इन्हीं का कोई प्रश्न है? टीका है, टिप्पणी है? आप बंगाली में भी प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रश्न उत्तर, प्रश्न बांग्ला में और उत्तर हिंदी में।
शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। इसको बंद कर दीजिए।